हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मार्केटिंग वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एंशॉफ्स मैट्रिक्स। 2x2 का ये मैट्रिक्स हर क्वाड्रेंट को मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो आप इस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे नोट्स और ये सब कुछ को मेरे एक्सेस कर सकते हो, करना चाहते हो, तो ये मैंने पूरा एक डिटेल्ड फोल्डर बना दिया है जिसमें आप सारा मेरा नोट्स, जितने भी मेरे नोट्स हैं, चाहे वो एचआरएम के हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, जनरल मैनेजमेंट, कल्चर, कम्युनिकेशन, चेंज मैनेजमेंट, फाइनेंस, सब मैंने यहाँ पे डालना शुरू कर दिया है। और इसी में मार्केटिंग वाले भी नोट्स अपने अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो आप यहाँ से सारे वो पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ज्वाइन का बटन का लिंक डाल दिया है, उससे आप क्लिक करो, इसके चैनल के मेंबर बन जाओ और आप चाहो तो ये सारे पीडीएफ्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप फटाफट इस लेक्चर का मजा लेते हैं और आई होप अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर ऑल्सो। Hello everyone, in this particular session we'll be talking about a very important concept in marketing and that's called Enshoff matrix. Every company wants to expand their business into different markets with new products. So this is one of those matrix which explains you the whole concept that how we can expand our market. हम market को कैसे expand कर सकते हैं हम इस particular matrix के through समझेंगे. So let us begin. So this matrix is also called as the product market expansion grid. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, the whole idea is about expansion. That the company wants to grow, the company wants to expand. So that's why the reason here is that how you can expand. तो ये कैसे expand कर सकते हैं आप, उसके कुछ alternatives Enshoff matrix में बताए गए थे. It is a tool used to develop business growth strategies by examining the relationship between new and existing product, new and existing market. Let me break down this for you. हम इसको break down करके समझते हैं. First, this is a tool. मैंने आपको बताया कि ये tool है. Second, it is used to develop. Why it has been developed? Because we want to expand our business for the business growth. That's your objective. And then how का भी जवाब यहाँ मिल जाएगा आपको. How का क्या मतलब है? Examining the relationship between new and existing. मतलब दो पैरामीटर हो गए, new and existing. And then again there are two parameters. One is the product and another is the market. तो कहने का मतलब there are four parameters in this matrix. Two is new and existing and two is product and markets. And we also assess the risk associated with each possible relationship. और हम रिस्क को भी assess करते हैं, रिस्क को भी निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का रिस्क होता है इस सारे combinations. Let me give you an overview of this matrix, that how this matrix look like. So this is the matrix. So again, जैसा कि मैंने आपको बताया था, then there are four dimensions in this matrix. यहाँ पर चार dimension आपको नजर आएंगे. The first dimension is called market penetration, second is called market development, third is called product development, fourth is called diversification. And again, on one side we have using existing market and new markets, and on other side we are using existing product and new products. तो ये वो मैट्रिक्स है. अब इसके चारों डायमेंशन को मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा that how this dimension works. So my first dimension is market penetration. So what is market penetration? When we introduce an existing product in the existing market. That means if you're introducing an existing product into an existing market, that means there is nothing new for the customers. Customers के लिए इस strategy में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि आप already वो product ला रहे हो market में जो पहले से exist करता है, साथ में आप उस market में लेकर आ रहे हो जो market भी पहले से exist करती है. So that means the market is also not new and the product is also not new. दोनों ही नए नहीं है. कस्टमर के लिए कुछ भी नयापन नहीं है आपके प्रोडक्ट में. ऐसे बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो इसी तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आती है जैसा प्रोडक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं. बट सवाल ये उठता है कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में भी जहां की इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है और कुछ भी प्रोडक्ट में इनोवेटिव नहीं है. तो व्हाट वी कैन डू? सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू ऑफर प्रोडक्ट एट ए लोअर कॉस्ट. तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके लिए कि प्रोडक्ट को लोअर कॉस्ट पे ऑफर कर दें. सो दैट मींस इफ यू आर ऑफरिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहा है, बट अगर आप उसको लोअर कॉस्ट पे ऑफर कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन दैट यू विल बी एबल टू पेनिट्रेट द मार्केट एज सून एज पॉसिबल. आप जितनी जल्दी पेनिट्रेट कर जाएंगे. द बेस्ट एग्जांपल यू कैन लुक एट इज जियो. When Jio came up with their telecommunication services, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया था जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग नहीं था. आप कॉलिंग कर रहे थे, आप एसएमएस कर रहे थे, आप इंटरनेट यूज कर रहे थे, बट व्हाट दे डिड, they penetrated the market by either providing it for free in the initial phase and then providing it for a very limited price or the lower cost price. And this is nothing new for Reliance. Reliance जिस भी business operations में जाता है, the same method they use. They always use the market penetration model. अगर उनके पास कुछ नया प्रोडक्ट है तो भी
उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी मार्केट पेनिट्रेशन होती है. अगर उनके पास नया प्रोडक्ट नहीं भी है, सो इन दैट केस ऑल्सो दे लाइक टू एक्सपैंड देयर मार्केट थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन. दैट मीन्स ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट. द होल ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. मार्केट शेयर क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो मार्केट, हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट पेनिट्रेशन में, कि नंबर ऑफ कस्टमर्स को राइज करा दे. द क्वांटिटी पे खेलना है, वॉल्यूम्स पे खेलना है. जितना ज्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा उतना ज्यादा हमारा मार्केट शेयर बढ़ने लग जाएगा. और एक बार अगर आपके पास मार्केट शेयर आ गया ना, तो उन कस्टमर से कमाना इतना मुश्किल काम नहीं होता. मैं आगे चल के आपको क्रॉस सेलिंग का कंसेप्ट समझाऊंगा. क्रॉस सेलिंग के कंसेप्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्रॉस सेल आप कैसे करते हैं. एंड यू ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ सेल्स एफर्ट्स. आप इनिशियल फेज में काफी सेल्स एफर्ट यूज करते हैं, बिकॉज यू नो दैट द प्रोडक्ट इज नथिंग न्यू. कभी भी यहां पर एक बात आप समझ लीजिए, कभी भी मार्केट में पुल तो होगा नहीं. पुल मीन्स कस्टमर कभी आकर आपसे ये नहीं कहेगा दैट आई वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज यूनिक. ऐसा कभी नहीं होने जा रहा. तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट को पुश करना पड़ेगा. यू नीड टू पुश द प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी ओनली डन थ्रू सेल्स एफर्ट्स. Apart from this, what other things you can do? Sales efforts के अलावा आप क्या कर सकते हैं? You can come up with special offers, जैसा कि जियो हमेशा करता है. They come up with special offers and also you can offer discounts for certain period. आप वो भी कर सकते हैं. Special offer like cashback और मे बी अनलिमिटेड पीरियड ऑफर. इस तरह के कुछ ऑफर्स, एक्सक्लूसिव ऑफर्स लाए जा सकते हैं टाइम टू टाइम. उससे भी मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ जाती है इमीडिएटली. एंड यू कैन ऑल्सो कम अप विद डिस्काउंट्स. तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे सक्सेसफुल बना सकती है? लो प्राइस, sales efforts, special discounts, special pricing, special discounts, cashbacks, and in this way you will be able to increase your market share. So I hope the first dimension, that is market penetration, is clear to you. Let's move to the second dimension and that's called market development. अब market development में क्या होता है उसकी बात करते हैं. The market development strategy creates growth through introducing the current product into the new market. अब यहां पर क्या इंटरेस्टिंग है कि प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग था. यहां पर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में जिसको कस्टमर जानता है, लेकिन वो प्रोडक्ट किसी और मार्केट में लोग जानते थे और अब आप उसको एक न्यू मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं. मतलब आप जिस मार्केट में जा रहे हैं उस मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को उतना ज्यादा नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट इन इंडिया, द रूरल मार्केट इज समथिंग वेयर एवरी कंपनी वॉन्ट्स टू गो राइट नाउ. हर कंपनी अपना हाथ जो है वो टायर 3 सिटीज, सेमी अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में अपना हाथ आजमाना चाहती है, बिकॉज दैट इज ए न्यू मार्केट. न्यू मार्केट में हमेशा ज्यादा पोटेंशियल होता है. तो ऑब्वियसली क्योंकि वो मार्केट सैचुरेट नहीं होता. अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं, लुक एट टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप शहर में जाएंगे, लाइक अब दिल्ली में चले जाए, बॉम्बे में चले जाए, वहां पर क्या होगा, हर आदमी के पास ऑलरेडी सिम कार्ड्स हैं. एवरीबडी इज होल्डिंग 2 to 3 सिम कार्ड. सबके पास 3 से 4 सिम कार्ड्स हैं. तो वहां पर सिम कार्ड्स को बेचने का आपके पास ऑप्शन ही क्या है, वेयर एवरीबडी हैज एन सिम कार्ड नाउ. वहां पर तो अब किसी न किसी से आप छीन ही सकते हैं. दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. यू कैन जस्ट ट्राई टू allure the customers of your competitors to your own brand. That's the only way we can do it. ऑन द अदर साइड, अगर आप रूरल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर अभी भी लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं है, या तो उनके पास नहीं है, या अगर उनके पास है तो उनके पास एक सिम कार्ड है, एक सिम कार्ड का स्लॉट खाली है. दैट मीन्स यू हैव दैट स्कोप इन टू दैट न्यू मार्केट. आपके पास न्यू मार्केट में स्कोप है एंड दैट इज द रीजन वाई दैट्स कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट. The strategy is used when the companies have identified markets that was previously unidentified. That means आप ये स्ट्रैटेजी कब यूज करते हो, जब आप किसी ऐसे मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेते हो जो मार्केट पहले अनआइडेंटिफाइड था, ये वो मार्केट इतना पोटेंशियल नहीं रखता था, या उस मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी, इतनी बाइंग पावर नहीं थी, वो आपको अब नजर आ रही है. And when it wants to expand its business into that market reach, that means अब अपने बिजनेस को आप नए मार्केट्स में लेकर जाना चाहते हो. इसका एक एग्जांपल और आपको देता हूं. आज से 3-4 साल पहले अफ्रीका में खूब इन्वेस्टमेंट की एयरटेल ने. उस समय ये लॉसेस में जा रहा था, बट आज के डेट में what has happened is Airtel is trying to capitalize the market of Africa, because Africa अभी अंडर डेवलपमेंट पोजीशन में है और उसके आने वाले चांसेस में हो सकता है इंडिया के बाद अगला मार्केट अफ्रीका बने. तो उस सिचुएशन में एयरटेल की जो ये स्ट्रैटेजी है कि मार्केट को जाकर डेवलप करना है, तो हो सकता है वो स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे दे. एंटर इनटू द न्यू मार्केट एंड न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज. आप सबसे पहले तो एक तरीका जो उसका होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि आप नए ज्योग्राफिकल एरियाज में जा सकते हैं जहां की पहले से आप एग्जिस्ट नहीं करते, या आप जो प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता. दोनों चीजें हो सकती हैं.
सेकेंड वे, यू कैन एंटर इनटू अ न्यू सेगमेंट ऑफ कस्टमर, आप नए सेगमेंट में भी जा सकते हैं। सेगमेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, एक मास मार्केट को सब सेगमेंट्स में डिवाइड करना। तो आप किसी ऐसे सेगमेंट में जा सकते हैं जिस सेगमेंट में आप पहले नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको देके समझा देता हूं। आप हॉर्लिक्स को देखें, हॉर्लिक्स पहले किड्स सेगमेंट में था बेसिकली, बट रिसेंटली उन्होंने एक वुमेन सेगमेंट में अपना किड्स हॉर्लिक्स फॉर वुमेन निकाला। दैट मीन्स वो एक नए मार्केट में जाने की कोशिश कर रहा है विद अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। I hope the market development is clear, and that is called the product development. Now, what is product development? The product development strategy is a growth tactic used when a company introducing a new product into an existing market. अब market already existing है, मतलब आप जिस मार्केट में जा रहे हैं दैट मार्केट इज कंप्लीटली एग्जिस्टिंग, वो मार्केट में पहले से आप प्रेजेंट थे, बट नाउ यू आर कमिंग अप विद अ न्यू प्रोडक्ट। आप एक नए प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं उस मार्केट के लिए, तो आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं इस सिचुएशन में। The emphasis need to be placed on detailed analysis of customer need, research and development. Obviously, when you are developing a product, हमने marketing के concept को already पढ़ा हुआ है, तो हमारा पहला objective क्या होता है? Before developing a product, to identify the needs of the customer, conduct a detailed analysis of research and development, so that you can understand what exactly customer needs. अगर आपको ये पता चल जाए what exactly customer needs, आपके लिए प्रोडक्ट को बनाना काफी आसान हो जाएगा। And you also try to ensure that you are the first one to enter into the market. आप ये भी ensure करने की कोशिश करते हैं उस मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट बिल्कुल नया हो। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस कैब बुकिंग सिस्टम। कैब बुकिंग सिस्टम यूएस के सिस्टम में बहुत पहले आ गया था विद द लॉन्च ऑफ उबेर, बट व्हेन ओला केम इनटू मार्केट, जब ओला इंडियन मार्केट में आई, ओला बेसिकली रेसिप्रोकल द मार्केट, द इमिटेटेड द होल मॉडल ऑफ उबेर इनटू इंडिया, बट इंडिया के लिए वो कंसेप्ट नया था। तो कहीं ना कहीं व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट ऐसा नहीं है कि लोग पहले ट्रैवल नहीं करते थे, बट आपने उनको एक नया प्रोडक्ट दे दिया, एक नया सर्विस दे दिया, एक नया तरीका बता दिया, एंड दैट्स द वे यू ट्राई टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर इंडियन मार्केट ओनली। द कंपनी कैन यूज फॉलोइंग मेथड्स। अब कंपनी इसमें ये चीज कर सकती है, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, दैट्स ऑब्वियसली पॉसिबल कि आप नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और इनोवेटिव एंड न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी एडेड टू द प्रोडक्ट, या फिर आप अपने ही प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसा कि मोबाइल फोन्स करते हैं। मोबाइल फोन्स क्या करते हैं बेसिकली, वो कंटिन्यूसली इनोवेशंस करते रहते हैं। कंटिन्यूसली इनोवेशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, अर्लियर द स्क्रीन साइज वाज 5.5, दे इंक्रीज्ड टू 5.8, they had a mono speaker, then they came up with stereo speakers, they had 2 cameras, now added with 3 camera, 4 camera, you had a selfie camera, then you have multiple, the flash in the camera. So what has happened is you are upgrading the product remains the same, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन आप उसको अपग्रेड कर रहे हो अपने नए नए टेक्नोलॉजी के हेल्प से। ये दोनों चीजें की जा सकती हैं इन द केस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, एंड दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, इट्स न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू न्यू मार्केट। अब यहां पर मार्केट भी नया है और प्रोडक्ट भी नया है, दोनों चीजें नई है, तो दैट इज कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब वो कंपनी बिल्कुल उस मार्केट में भी अवेलेबल नहीं थी, उसके पास वो प्रोडक्ट भी नहीं था, एक तरह से एक नई कंपनी खोलने जैसी बात हो रही है। The strategy requires high investment, time and resources. जैसा मैंने आपसे कहा, it is almost like coming up with a new company. That means you need high investment, आपको काफी ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। You need time also, क्योंकि आपको establish करना पड़ेगा, मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, and then you need a lot of resources also. This reduces the risk of a particular company. Now question is, अगर इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो कंपनी क्यों करती है ये डाइवर्सिफिकेशन, क्यों करती है? बिकॉज इससे आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। द एग्जांपल इज फ्रॉम टाटा। टाटा नमक से लेकर गाड़ी तक सब बनाती है। अब वो ऐसा क्यों करती है? द रीजन हियर इज दैट टाटा वांट्स टू एक्सपैंड देयर पोर्टफोलियो। उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर करके अलग अलग बिजनेस में ले गए। दे आर इनटू सॉफ्टवेयर, दे आर इनटू ट्रक्स, दे आर इनटू एफएमसीजी, दे आर इनटू एवरी पॉसिबल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो व्हाट हैपेंड इज, अगर उनका कोई एक बिजनेस उनको लॉस भी दे रहा है तो बाकी बिजनेस से उनको प्रॉफिट बन रहा है। तो ऑब्वियसली दैट्स रियली helps any company in reducing their risk. Anshoff reinforces the strategy will require the company to acquire new skills, टेक्निक्स एंड पॉसिबल फैसिलिटीज। एंशॉफ ने बार बार इस बात को रीइंफोर्स करके कहा कि अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यू मे नीड टू एक्वायर न्यू स्किल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी पहले एफएमसीजी में थी और अब वो एप्लीकेंसेस बनाने जा रही है तो उसको वो सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री हैज देयर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट लॉज, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हर चीज बदल जाता है, एक डिफरेंट प्लेग्राउंड है। जैसा बिल्कुल ऐसा लगता है कोई प्लेयर ऐसा है जो पहले क्रिकेट खेलता था, अब क्रिकेट खेलने के बाद वो फुटबॉल खेलने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट के रूल्स अलग हैं, फुटबॉल के रूल्स अलग हैं, एंड इट विल ऑलवेज बी चैलेंजिंग।
So I hope you understood the whole concept of Anshoff matrix. It is a very good tool for expanding your market either through market penetration, market development, product development, or through diversification. So thanks for watching. We'll be meeting in the next session.